Hello friends, I am CA Nikita Agrawal. This is in continuation of my first episode. Here it is a second episode titled Insights of Activities of the first GST web series named क्या समाज सेवा पर भी GST है. In my first episode I had deliberated that कि जो सोशल सर्विस कोई भी पर्सन कर सकता है, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, एक पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, LLP, बॉडी कॉर्पोरेट, लोकल अथॉरिटी, सोसाइटी, ट्रस्ट एक्सेट्रा, एनी ऑफ द पर्सन. हमने ये भी देखा था फर्स्ट एपिसोड में कि अगर कोई भी हम कंसिडरेशन रिसीव करते हैं फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ चैरिटेबल एक्टिविटी और अ सोशल एक्टिविटी, तो वो GST लॉ के अंदर टैक्सेबल होगी. नाउ व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस डेलिब्रेशन I had come up with certain of the questions to present my views or the legal views. My first question is, who are the charitable trust? बेसिकली चैरिटेबल ट्रस्ट एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि चैरिटेबल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए स्पेशली बनाई जाती है, और वो अगर हम टैक्स के बेनिफिट्स को लेना चाहते हैं तो हमें उनको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. सो द चैरिटेबल trust are those trust or entities which are specifically formed for the purpose of performance of a charitable activities or social activities. Now my second question is, would the activities specified under income tax law and a GST law are same? The answer is not fully. There are certain activities which is under income tax law but not in a GST law. And also we cannot compare the activities enumerated in both the laws because the concept of levy of tax under both the laws are different. But the activities which are being specified under income tax law are relief of poor, yoga, education, medical relief, advancement of any other object of general public utility, preservation of monuments or place or object of historic interest, preservation of environment including watersheds, forest and wildlife. So these are the activities which is being treated under section 2 subsection 15 of Income Tax Act 1961. Now my next question is, would the tax liability be arise on all the activities performed by the charitable trust? या फिर हम ये कहें कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जो चैरिटेबल ट्रस्ट अगर उनको परफॉर्म करता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा. सो बेसिकली देयर आर 12 सच एक्टिविटीज़ विच इज़ बीइंग स्पेसिफाइड और गिवन अंडर नोटिफिकेशन नंबर 12 बाय 2017. जो ये एक्टिविटीज़ अगर एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट अगर परफॉर्म करता है तो उस पर GST की एग्जम्पशन दे रखी है. बट ध्यान रहे, यहाँ पे सिर्फ एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट को ही एग्जाम्पशन प्रोवाइडेड है, ना कि अनरजिस्टर्ड को. सेकेंडली, रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट एक वही ट्रस्ट मानी जाएगी जो कि सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में प्रोवाइडेड है. सो माय फर्स्ट 10 एक्टिविटीज़, अगर फर्स्ट 10 एक्टिविटीज़ चैरिटेबल ट्रस्ट अगर परफॉर्म करता है तो उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगा. Those 10 first 10 activities are public health by way of care or counseling of terminally ill person or person with severe physical or medical disability. Second, public health by way of care or counseling of person afflicted with HIV or AIDS. Third, public health by way of care or counseling of persons addicted to the dependence forming substance such as narcotic drugs or alcohol. Fourth, public health by way of public awareness of preventive health, family planning or prevention of HIV infection. Fifth, advancement of religion, spirituality or yoga. Sixth, advancement of educational program or skill development relating to the abandoned, orphaned or homeless children. Seventh, advancement of educational program or skill development relating to the physically or mentally abused and traumatized persons. Eighth, advancement of educational program or skill development relating to the prisoners. Ninth, advancement of educational programs or skill development relating to the person
over the age of 65 years residing in the rural area. 10th, preservation of environment including watersheds, wildlife and forest. It means that कि अगर ये 10 एक्टिविटीज़ एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट परफॉर्म करता है तो चैरिटेबल ट्रस्ट जिसने कि इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कोई भी अमाउंट रिसीव करा है, कोई भी कंसिडरेशन रिसीव करा है, तो उस पे टैक्स नहीं लगेगा. एंड दिस 10 एक्टिविटीज़ आर बीइंग इंक्लूडेड अंडर द टर्म called it charitable activities under notification number 12 by 2017. There are 2 additional activities if being performed by the charitable trust, then also the such trust can get the exemption. Those 2 activities are training or coaching in recreational activities relating to sports, renting of precincts of a religious place meant for general public with certain exemptions. So we can say it कि गवर्नमेंट ने सारी सोशल एक्टिविटीज़ को टैक्सेबल नहीं करा है. समाज के और सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, नेशन के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ एक्टिविटीज़ को एग्जाम्पशन भी प्रोवाइड करी हैं. इट मीन्स दैट कि अगर इन 12 एक्टिविटीज़ के अलावा कोई भी और एक्टिविटी एक चैरिटेबल ट्रस्ट परफॉर्म करता है तब उसको वो उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा एंड दैट वुड बी लायबल एज अ टैक्सेबल. नाउ माय लास्ट क्वेश्चन इज हु एल्स कैन एंजॉय द टैक्स बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम द चैरिटेबल ट्रस्ट इफ परफॉर्मिंग द चैरिटेबल एक्टिविटीज़. कहने का मतलब ये है कि चैरिटेबल ट्रस्ट के अलावा ऐसे और कौन से पर्सनस हैं अगर वो ये चैरिटेबल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं तो उनको एग्जाम्पशन मिल जाएगी. बेसिकली ये वो पर्सन्स हैं जो कि एक नॉन प्रॉफिट, बिना किसी प्रॉफिट के एंटिटीज़ को रन करते हैं. वी कैन से इट अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी, जहाँ पे इस एंटिटी के जो मेंबर्स से अगर मेंबरशिप फीस 1000 रुपये तक की ही ली जा रही है साल भर में, और ये जो स्पेसिफाइड फर्स्ट 10 चैरिटेबल एक्टिविटीज़ को अगर परफॉर्म करते हैं तभी जो है उनकी टैक्स एग्जाम्पशन उनको प्रोवाइड हो पाएगा. सो वी कैन से इट कि गवर्नमेंट ने सारी एक्टिविटीज़ को टैक्सेबल नहीं करा है. कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो डायरेक्टली लिंक करती हैं विद द सोशल एक्टिविटीज़ और सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए. नाउ वी कैन से इट कि जो डोनेशन हम रिसीव करते हैं बाय अ चैरिटेबल रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट इज़ नॉट फुल्ली टैक्सेबल. किसी भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट को अगर कोई अमाउंट रिसीव करता है तो रिसीव करने से पहले उसको अपने एग्रीमेंट्स में, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में या फिर अपनी परफॉर्मेंस में देखना पड़ेगा कि वो पैसा वो कहाँ पे एक्सपेंड करने जा रहा है और अकॉर्डिंगली उस पर जीएसटी की लायबिलिटी को उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा. सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस and stay tuned for my third episode. Thank you.